Good morning, students. Today we are going to learn a new chapter, Laws of Returns, Returns to a Factor and Returns to Scale. In this chapter, we are going to study about the relationship between input and outputs. It means we are talking about production. Therefore, first we will learn what is production. Production means the creation of utility. It means the act of making goods and services and thereby adding utility to the object is called production. Production क्या होता है बेटा? When we are combining the inputs and what we are getting an output, this is called the process of production. It is the process of value adding. It means the creation of utility. यहाँ पे utility create कर रहे हो object की. I hope it is clear. Now, production function. Production function means the functional relationship between input used and output produced by a firm. मतलब कितना इनपुट हुआ और इससे कितना आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है, फर्म ने किया है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन. It expresses the maximum quantity of output that can be produced with any given quantity of inputs. कितना मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है विद अ गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स, we call it as production function. A production function is defined for a given technology. It explains the functional relationship between factors of production and physical output. ये functional relationship बताता है किसके related? Inputs. Inputs मतलब factors of production के related और उससे कितना output produced हो रहा है. Mathematically, Qx is equals to functional F1, F2, F3 and so on. Fn bracket close. It means Qx means we are talking about production of a commodity X. F1, F2, F3 means we are talking about the different inputs which are used in the production of commodity X. जो अलग अलग inputs जो commodity को produce करने पे use कर रहे हैं. Next is short run and long run. Short run क्या होता है बेटा? It is a time period in which some factors of production cannot be changed, hence they are taken as fixed factors. वो time period जो बहुत कम है, इसलिए हम उसमें कुछ factors of production को change नहीं कर सकते. It means here some factors are fixed and some are variable. Fixed मतलब आप change नहीं कर सकते, variable मतलब कुछ factors में आप change कर सकते हो. Long run, it is a time period in which all the factors of production are variable. It means जितने भी inputs हैं वो सब variable हैं, यहाँ पे fixed कुछ भी नहीं है. Hence there is no fixed factor in the long run. It means long run में कोई भी fixed factor नहीं होता. Now next is types of production. Production function is of two types. First one, short run production function. It refers to functional relationship between input and output in which one factor of production is taken as fixed and others as variable. When we are talking about short run production function, in this we consider one factor fixed है और दूसरा factor variable है. अगर हम mathematically इसको read करें बेटा, it means Qx is equals to functional bracket L comma K. It means K के ऊपर जो बार है बेटा, that is capital, that is fixed, and L labor variable factor है जो change हो सकता है. Returns to a factor. The law relating to short run production function is termed as law of returns to factor or law of variable proportion. इन्होंने क्या कहा? शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम कौन सा लॉ रीड करते हैं? रिटर्न्स टू अ फैक्टर. और इसको और क्या बोला जाता है बेटा? Law of variable proportion also. As given by classical economist Professor Alfred Marshall. ये Professor Alfred Marshall ने दिया है. There are 3 stages of operation of this law और इस law के 3 stages हैं. Increasing return to factor, diminishing returns to a factor and negative returns to a factor. इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा अभी बाद में नेक्स्ट वीडियो में. First we are going to learn long run production function. Long run production function क्या है बेटा? It refers to the functional relationship between input and output in which both the factors of productions are variable. यहाँ पे
हम इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप रीड कर रहे हैं और क्या एजम्पशन ले रहे हैं दैट ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल, क्योंकि लॉन्ग रन है, यू हैव इनफ टाइम टू चेंज ऑल द फैक्टर्स। तो यहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं है। मैथमेटिकली वी कैन रीड एज QX इज इक्वल्स टू F फंक्शनल L कॉमा K, मीन्स कॉमोडिटी X को प्रोड्यूस करने के लिए आपने लेबर और कैपिटल यूज़ करी है एंड बोथ आर वेरिएबल। रिटर्न्स टू स्केल, द लॉ रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन फंक्शन इज रिफर्ड टू एज लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल। मतलब लॉन्ग रन में हम कौन सा लॉ करते हैं, रिटर्न टू स्केल, इन विच ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, जिसमें सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल हैं एंड नो फैक्टर्स इज फिक्स्ड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ फिक्स प्रपोर्शन। इस लॉ का और दूसरा नाम क्या है बेटा, लॉ ऑफ फिक्स प्रपोर्शन, बिकॉज द रेशियो बिटवीन द फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर डज नॉट चेंज, क्योंकि ये मानते हैं कि जो फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर का जो रेशियोज़ है वहाँ यहाँ पे चेंज नहीं होता है। There are 3 stages of this law: increasing return to scale, constant return to scale and diminishing return to scale. तो आप return to factor और return to scale में डिफरेंस भी लिख सकते हैं, वो शॉर्ट रन में होता है, ये लॉन्ग रन में होता है, और इसकी 3 अलग स्टेजेस हैं और उसमें 3 अलग स्टेजेस हैं, ठीक है। और शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स्ड होता है और बाकी वेरिएबल होते हैं, लॉन्ग रन में कोई भी फैक्टर फिक्स्ड नहीं होता। तो यू कैन राइट द 3 डिफरेंसेस, डिफरेंस बिटवीन रिटर्न टू अ फैक्टर एंड रिटर्न टू स्केल। नाउ concepts related to production. There are mainly 3 concepts related to the process of production. First one is total product. Total product को हम और क्या बोलते हैं बेटा, total physical product, that is TPP. It is a sum total of output produced by all units of labor along with other factors of production. It means total output कितना produced हुआ by all the labors. It is also referred as TPP as the variable input. It means अगर हमको जब TP कैलकुलेट करना है तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, एवरेज प्रोडक्ट इंटू L मीन्स यूनिट्स ऑफ वेरिएबल लेबर, और सिग्मा MP. MP means marginal product that signifies the total of marginal product corresponding to all the units of factor used. एवरेज प्रोडक्ट को हम और क्या बोलते हैं बेटा, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट. It is a per unit production of the variable factor. Means total production को divided by variable factor करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, average product. It is obtained by dividing the total product by the number of units of variable inputs. The average product curve is a hump shape or inverted U shape. The formula for calculating average product is TP divided by L. मतलब total product को हम आउटपुट से क्या नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ इनपुट से डिवाइड कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट. मार्जिनल प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट. इट इज़ अ चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ अ यूनिट चेंज इन द इनपुट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. इन्होंने क्या कहा, टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंजेस आए, व्हेन वी हैव एडेड 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. कहीं पे भी वर्ड बेटा मार्जिनल यूज़ होता है, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन, 1 मोर यूनिट ऑफ कॉमोडिटी. ठीक है, तो व्हेन वी आर एडिंग 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल, हाउ मच देयर इज अ चेंज इन द टोटल प्रोडक्ट, दैट वी कॉल इट एज MP. Minor product is an addition made to the total product by employing an additional unit of variable input, keeping the other inputs unchanged. MP अगर हमको कैलकुलेट करना है, दैट इज़ माइनर प्रोडक्ट. द फॉर्मूला इज TPN माइनस TPN माइनस 1. मीन्स जिसका आपको माइनर प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है उसका टोटल प्रोडक्ट लेंगे, टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू को उसके प्रीसीडिंग टोटल प्रोडक्ट की वैल्यू से माइनस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग द माइनर प्रोडक्ट ऑफ 6th कॉमोडिटी, तो टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6th कॉमोडिटी को माइनस करेंगे टोटल प्रोडक्ट ऑफ 5th कॉमोडिटी से, तो हमको क्या मिल जाएगा, मार्जिनल प्रोडक्ट. The marginal product thus measures the rate at which the total product is changing as one factor varies. Labor is a variable factor. We consider symbol L for the labor which is taken as a variable factor.
नेक्स्ट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू लर्न इज रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP। बेटा मैंने आपको एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है वो बताया, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है वो बोला। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन AP एंड MP। फर्स्ट वन, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इज अबव द एवरेज प्रोडक्ट, दैट इज MP इज ग्रेटर देन AP। अगर हम यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं बेटा, OX एक्सिस में यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, मींस लेबर हमने लिया है, और OY एक्सिस में एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट लिया है। AP आपका एवरेज प्रोडक्ट कर्व है और MP आपका मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व है। मैंने आपको AP कर्व में बताया था कि AP कर्व इन्वर्टेड U शेप होता है, ठीक है। जब AP राइज कर रहा है MP भी राइज करता है बेटा, ठीक, बट MP ग्रेटर रेट से राइज करता है, इसलिए MP का कर्व AP के कर्व से ऊपर है। सेकेंड पॉइंट है, व्हेन AP इज फॉलिंग मार्जिनल प्रोडक्ट इज बिलो द एवरेज प्रोडक्ट। जब AP फॉल कर रहा है तो MP और तेजी से फॉल करेगा, ठीक। इट मीन्स MP इज बिलो एवरेज प्रोडक्ट, MP इज लेस देन AP इस पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, व्हेन एवरेज प्रोडक्ट रीचेज अ मैक्सिमम पॉइंट मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू एवरेज प्रोडक्ट, दैट इज MP इज इक्वल्स टू AP। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्राफ जब आप ड्रॉ करोगे उसके लिए भी बेटा। जिस पॉइंट पे AP मैक्सिमम होता है उसी पॉइंट पे MP AP के पॉइंट को कट करता है, वहीं पे हम लिखेंगे MP इज इक्वल्स टू AP। एंड द फोर्थ वन, मार्जिनल प्रोडक्ट कैन बिकम ज़ीरो और नेगेटिव, बट एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट बिकम ज़ीरो और नेगेटिव। मार्जिनल प्रोडक्ट ज़ीरो और नेगेटिव हो सकता है, यू कैन सी हियर मार्जिनल प्रोडक्ट OX एक्सिस को भी टच कर रहा है और उससे नीचे भी फॉल कर रहा है, पर एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट बी बिकम ज़ीरो और नेगेटिव, वो ज़ीरो नहीं होगा और नेगेटिव भी नहीं होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का क्या रिलेशन है बेटा? फर्स्ट वन, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजेज टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है टोटल प्रोडक्ट ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे। मार्जिनल प्रोडक्ट जब डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। आप देखो पॉइंट A तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा था क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा है। A to B पे अगर आप ग्राफ पे देखोगे तो A to B में दोनों ग्राफ्स में अगर हम ध्यान से देखें तो MP वाले ग्राफ में अगर हम पहले देख रहे हैं तो मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज हो रहा है, और अगर हम TP के ग्राफ में इसी सेम पॉइंट पे देखें तो क्या होगा बेटा? TP क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है बट यार इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। थर्ड वन, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम ज़ीरो टोटल प्रोडक्ट रीचेज इट्स मैक्सिमम। ये भी पॉइंट ग्राफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप बना रहे हो। जिस पॉइंट पे MP ज़ीरो आ रहा है इट मीन्स TP की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, एंड बिकम कांस्टेंट। फोर्थ पॉइंट, व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट बिकम्स नेगेटिव। आप देखो मार्जिनल प्रोडक्ट जब नेगेटिव है, जब x के नीचे जा रहा है एक्सिस के, तो टोटल प्रोडक्ट क्या करेगा? फॉल करेगा। I hope it is clear the relationship between TP and MP with the help of the graph to all of you. Thank you students.